Possibly. I've actually been still finishing the film, trying to get my theatrical print ready before we leave. So I've not been in touch with what's going on in the news, but if that is the case, we are leaving for Toronto tonight. We will be back, I think, in another 7 days. So we are glad to show the film to whoever wants to see it. Like I said, I mean, if there's anything I can vouch for, it's the integrity of this film. See, you know, if one thinks about all these things and starts getting cynical or precautious, you will somewhere start affecting the integrity of the film or the intention with which you wanted to make the film in the first place. अगर इतना ही घबराना है तो फिर इस तरह की सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाना ही नहीं चाहिए. Having said that, yes, it is based on a true incident, but because it's a film, we had to take certain cinematic liberties. Certain characters जिनके बारे में हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हमको फिल्म में वन डायमेंशनल कैरेक्टर के बजाय मल्टी डायमेंशनल एक कैरेक्टर को बहुत सारे डायमेंशन देने पड़ते हैं. तो उनकी पर्सनल ट्रेजेक्ट्री, उनके मैनरिज्म्स, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, these things we have to fictionalize, which is the reason why the names in this film are fictional. तलवार जिसका बार बार मुझसे पूछा जाता है ये why is this the title? This is the sword, not the surname. It's the sword in the hand of the Statue of Justice. That is the talwar that we talk about. The ending is finite always, otherwise it wouldn't be an end. What I can say is the film does end. It is not a film without an end. But if you ask me whether the film draws a conclusion to something, that it does not do. What it does is it takes the audience up to a point where they are fairly well informed to come to their own conclusion. According to the real timeline, if you remember what happened in the initial days of the investigation, 3 police officers who were in charge of the investigation were repeatedly transferred. And if we have to do that as authentically in the film, we will be having so many characters that you will not be able to identify with either one. So, like I said, sometimes you have to take certain cinematic liberties to keep your material and your content clear. So, what we've actually done is probably amalgamated 2 or 3 characters into one rather than add fictional character. मकसद ऐसी फिल्म का जिसके जवाब जिन लोगों ने 3 बार लगातार इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है, जब उनके पास जवाब नहीं है तो हमारे पास जवाब भी नहीं हो सकता. तो इस फिल्म का मकसद जवाब देना नहीं है, लेकिन जो सवाल अभी भी खड़े रहते हैं दिमाग में, सोसाइटी में, मीडिया में, कई पहलू हैं इस केस के जिनमें इफ़ यू सी द डॉट्स दे नॉट ऑल कनेक्टेड, उसी को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि कहीं जाके अगर इस फिल्म के ज़रिए इस मुद्दे को एक कंप्लीशन मिलती है या वो जो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर वो जर्नी भी शुरू हो जाए, प्रोसेस शुरू हो जाए उन सवालों के जवाब पाने का, यही मकसद है इसमें. आयरॉनिकल तो ज़रूर है, लेकिन इस चीज़ में सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया को मिलना चाहिए कि एज अ मीडिया हाउस उन्होंने इस तरह का सब्जेक्ट अप्रूव किया, उसको अनकंडीशनली बैक किया. और अगर आप रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पूछे तो मुझे सिर्फ एक कंडीशन दी गई थी टू मेक अ गुड फिल्म. उसके अलावा देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन मी एट ऑल. जी हाँ, क्योंकि एक छोटी सी लड़की को जब हमको उसके साथ मर्डर सीक्वेंसेस शूट करने हैं, obviously you use a lot of special effects and prosthetics and things like that, but it's still violent. और हमको दोनों तरफ से वो शूट करना है. इट्स नॉट ओनली कि एक बार कर लिया और ख़त्म हो गया, हमको 2 बार करना है, 2 अलग अलग मर्डरर्स के साथ. वो मुश्किल था. और आई थिंक उसी दौरान पापा विजिटेड माई सेट व्हेन वी वर इन दिल्ली, एंड उन्होंने कुछ लाइन्स उसी वक्त सेट पे बोली. ये उन्होंने लिखी थी सेट पर. बस यही फ़र्क है हकीकत के होने और दिखाने में. बस यही फ़र्क है हकीकत के होने और दिखाने में. उन्हें डर था कि वो बच ना जाए, आपको डर है उसे लग ना जाए. हाँ, पर वो मैं फिल्म रिलीज़ होने से पहले नहीं बता पाऊँगी, नहीं बताना चाहूँगी.
क्योंकि इट विल अगेन कलर योर अप्रोच टू द केस। मैं चाहूँगी कि आप जब इस फिल्म को देखने आएँ, आपका जो ओपिनियन है इस केस के बारे में, आपका जो कंक्लूजन है, आप सिर्फ वो लेकर थिएटर में आएँ। और फिर जब आप फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकलें, तो अगर हमने वो नज़रिया बदलने में अगर हम वो सक्सेसफुल रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो ठीक है। पर मैं अपना जो व्यू है या मेरी खुद की जो बिलीफ है वो मैं आपके ऊपर डाल के आपकी थिंकिंग को कलर नहीं करना चाहूँगा।